Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Miss Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SimCat and set is a deductive reasoning based set. And the set says Lal Singh is the owner of the famous bookshop Chand Comic Shop. He sells only three type of comics, namely Mama Chaudhary, Pinkle, and Tillu. The prices per copy of a comics Mama Chaudhary, Binkal and Tillu are rupees 8, rupees 4 and rupees 10 respectively. On 1st January 2022, 30 customers visited the shop. Each of them bought a single copy of comic book among the three types and paid price used coin of denomination of rupees 10 and rupees 2. Either every customer paid Lal Singh the exact change or Lal Singh gave the change to his customer in case a customer paid a higher denomination coin. Lal Singh had no money with him at the beginning of the day. After every 10 customer, he noted that at least one copy of each type of comic was sold in every batch of 10 copies sold. After selling the first 10 copy, he had 6 coins of rupees 10 and 2 coins of rupees 2 with him. After selling the next 10 copies, he had 13 coin of rupees 10 and 12 coin of rupees 2 with him. After selling the last 10 copies, he had 22 coins and rupees 10 and 9 coin of rupees 2 with him. Questions पढ़ लेते हैं. On 1st January, the least possible number of customer bought the comic Mama Chaudhary. Then the total number of customer who bought the comic Binkal was. Question number 2 बोला on 1st January, the number of customer who bought Tillu among the first 10 customer was. Question number 3 बोला which of the following can be the number of copies of Mama Chaudhary sold on 1st January 2022. Question number 4 बोला on 1st January 2022, the number of customer who bought the comic Tillu was. Yeah. ठीक है. डिडक्टिव रीजनिंग का सेट है जहाँ पे अपने को क्या कह रहा है कि देयर इज सम कैरेक्टर लाल सिंह हु इज ओनिंग अ शॉप एंड ही इज सेलिंग थ्री टाइप ऑफ मैगजीन जिसका नाम दिया हुआ है मामा चौधरी पिंकल एंड टिल्लू एंड उसका प्राइस दिया हुआ है प्राइस में दिया हुआ है मामा चौधरी का प्राइस है 8 रुपए 4 रुपीज एंड का प्राइस है 10 रुपीज ठीक है नाउ एनीवन हु इज कमिंग टू परचेज इज गिविंग ईदर 10 और 2 का डिनोमिनेशन ठीक है मतलब लेट्स से आई वेंट टू परचेज तो मैंने अगर 8 रुपए वाली ली है तो आई एम पेइंग 2 कॉइन के 4 कॉइन्स ऐसा या ऐसा होने वाला है कि आई एम गोइंग टू पे 10 का 1 कॉइन जिसके में लाल सिंह विल पे बैक 2 का डिनोमिनेशन तो बेसिकली जो पूरी कहानी है वो 10 और 2 के अराउंड चल रही है ठीक अच्छा चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन क्या बोला लाल सिंह हैड नो मनी विद हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द डे आफ्टर एवरी 10 कस्टमर ही नोटेड व्हेन द डे स्टार्टेड लाल सिंह हैड नो मनी तो मतलब ये जो पूरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसके पास फ्रेश अमाउंट आ रहा है मतलब जो उसके पास अमाउंट आ रहा है आफ्टर एवरी 10 कस्टमर ही नोटेड हर 10 कस्टमर के बाद व्हाट ही नोटेड इज एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉमिक वाज सोल्ड इन एवरी बैच ऑफ 10 कॉपी सोल्ड यानी कि सबकी कम से कम एक-एक कॉपी तो बिकी है एटलीस्ट 1 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। बट ये ध्यान देना है कि वो तीनों का जो सम है वो 10 होने वाला है। ठीक है? आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 10 ही हैड 6 कॉइन ऑफ रुपीज़ 10 एंड 2 कॉइन ऑफ रुपीज़ 2 विद हिम। ठीक है? पहला जो बैच इसने बेचा, यानी कि पहले 10 के बाद इसने क्या देखा? ही वाज़ लेफ्ट विथ कितना आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 10 ही हैड 6 कॉइन ऑफ रुपीज़ 10 यानी कि 60 रुपीज़ प्लस 2 कॉइन ऑफ रुपीज़ 2 यानी कि 4 रुपीज़ यानी कि इसके पास टोटल 64 रुपीज़ थे। ठीक है? जब इसने दूसरा बैच बेचा इसने क्या नोटिस करा आफ्टर सेलिंग द नेक्स्ट 10 कॉपीज ही हैड 13 कॉइन ऑफ रुपीज 10 यानी कि 130 ठीक प्लस 12 कॉइन ऑफ रुपीज 2 यानी कि 154 यानी कि अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे कितना जनरेट हुआ 90 रुपीज जनरेट हुआ होगा ठीक है पहले 10 का 64 है और फिर 154 है तो क्यूमुलेटिव होते जा रहा है ना तो यानी कि 11 से 20 में उसके पास कितना पैसा जनरेट हुआ 90 का जनरेट हुआ है ठीक ऐसे ही आगे चलते हैं After selling the last 10 copy, he had 22 coins of rupees 10 and 9 coin of rupees 2 with him. ठीक है आफ्टर सेलिंग लास्ट 10 कॉपी यानी कि 21 से जब 30 इसने बेचा तो ही वाज लेफ्ट विथ 22 कॉइन रुपीज 10 यानी कि 220 प्लस 9 इंटू 2 18 यानी कि 238 यानी कि इसके पास कितने पैसे बच गए होंगे इसके पास बच गए होंगे 158 और 4 रुपए ऐड करेंगे 158 एंड इधर आ गया 84 रुपीज ठीक है
यानी कि इसके ट्रांज़ैक्शन से हमने ये निकाल दिया कि फर्स्ट 10 ने उसको कितना पैसा दिया, ₹64 दिया है। नेक्स्ट 10 ने उसको कितना दिया, 90 दिया है। जो नेक्स्ट 10 है वो दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछ देता कि बताओ करेंसी कितनी एक्सचेंज हुई है पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शंस में, तो बड़ा दिक्कत हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसमें ये पूछा हुआ है कि हमें नंबर ऑफ कॉपीज़ निकालनी है। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे आप अगर जाओ तो अ वेरी सिमिलर सेट इज़ देयर 2018 का है। दिस वन सेट जहाँ पे एटीएम से नोट डिस्पेंस हो रहा है 5000, 2000 और अ, ऐसा 5000, 2000 और 100 का। इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलर टेम्पलेट। उसमें भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन बना के अपने को सॉल्व करना होता है, ठीक है? अब अपने पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो अपने को पता होना चाहिए। पहला, लेट्स से ये जो ये वाली है, ये ए यूनिट की बेची गई है, ये बी यूनिट बेची गई है और ये सी यूनिट बेची गई है। तो फॉर फर्स्ट 10 कस्टमर्स अपने को क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 कॉपी बेची गई है वेयर ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी पता है कि ए, बी और सी ये तीनों 0 के बराबर नहीं है। ठीक है? तीनों के लिए ये कह दिया गया है। ठीक? तीनों ही 0 नहीं है। तो मतलब ए की वैल्यू कुछ होगी, बी की वैल्यू कुछ होगी, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि भई revenue wise 8A plus 4B plus 10C is equals to कितना 64। ये भी दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बन रहा है, ये बन जा रहा है 4A प्लस 2B प्लस 5C इज इक्वल्स टू 32। एंड इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो इससे इधर क्या बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 20। ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी किसकी? ए और सी की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ ये और ये कैंसल हो गया, इधर क्या बन गया 2A प्लस 3C इज इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आई कैन फाइंड आउट द ए और सी की वैल्यू। तो यानी कि ए, बी और सी तीनों की वैल्यू मिल सकती है। अब इसकी थोड़ा-सा केस बनाते हैं। क्या होना चाहिए, ठीक है? कैन आई टेक सी की वैल्यू 0? ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि सी की वैल्यू अगर 0 लूँगा तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा विद दैट कंडीशन। कैन आई टेक सी एज़ 1? सी की 1 लूँगा तो यहाँ पे ये इवन नंबर का कहानी नहीं बचेगी, तो आई नीड टू हैव सी की वैल्यू 2। अगर सी की वैल्यू 2 लेता हूँ तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए 3 और ये होना चाहिए 5, क्योंकि अपने को क्या पता था, ये जो सम है वो 10 बनाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20 और यहाँ पे क्या आ गया 20। तो 20, 20 और 24 यानी 64 है। एक केस बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा सी की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 2 के बाद क्या ले सकते थे, सी की वैल्यू आई कैन 4 ले सकते हैं। सी की वैल्यू 4 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो यानी कि यहाँ पे क्या केस मिला, एक ही केस मिला कि 3 5 2 होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे समझना ना, बाकी केसेस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए बिकॉज़ अपने को साफ दिख रहा है बाकी जगह पे क्या हो रहा है, ए या सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो यानी कि अगर मैं ऑर्डर वाइज़ बात करूँ, तो इसने क्या करा है, 3 मैगज़ीन, 5 मैगज़ीन और 2 मैगज़ीन बेची है तीनों की। चलो, इसी तरीके से लेट्स फिगर आउट फॉर नेक्स्ट केस, मतलब ये जो नेक्स्ट बैच है 11 से 20 वाला, ठीक है? 11 से 20 वाले के लिए दिमाग लगाते हैं। ये था फॉर 1 से 10, ये रहा तुम्हारा 11 से 20 का। अपने को क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 एंड 4a प्लस सॉरी 8a प्लस 4b प्लस 10c इज इक्वल्स टू नथिंग बट 90। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 45, ठीक है? जिसको कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 20, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे अपना वही फिर से कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कैंसल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस 3c इज इक्वल्स टू नथिंग बट 25, ठीक है? अब अगर ये मिल गया है तो आई कैन टेक आउट वैल्यू ऑफ एबीसी यहाँ से भी, तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू क्या बन सकती है, ये दिमाग लगाते हैं। ए, बी और सी की वैल्यू पे दिमाग लगाते हैं। तो ए की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, सी की वैल्यू को मैं 0 ले नहीं सकता, सी की वैल्यू को 1 ले सकता हूँ, बट उस केस में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11।
विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 11 और 1 वो एक्सीड कर जाएगा 10 से। सी की वैल्यू को मैं देखो यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 11। अब इसके बाद कहाँ पे आनी चाहिए? सीधे इनके उस पे आना चाहिए, मतलब कोएफ़िशिएंट के चेंज पे 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ जाना चाहिए था 5, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम 10 हो जाएगा, इस केस में ये बन जाएगा 0। ठीक है। फिर आ जाएगा कितना? यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ पे दे देंगे 1, तो ये तुम्हारा एक केस ये बन सकता है। इसके बाद अगर करेंगे तो दिस विल बिकम -1 व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि फॉर बैच नंबर 2 इट हैज़ टू बी 217। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 4 4, तो 16 प्लस 4 ये तो हो जाएगा 20, एंड 7 इंटू 10 70, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 2 1 और 7। ठीक। चलो, ये भी डन हो गया। इसी तरीके से लेट्स फिगर आउट फॉर लास्ट वाला बैच। ठीक है। ईज़ी सेट है, बट इट्स जस्ट दैट कि नया तरीके का है, तो शायद तुम्हारे लिए एक नया बन जाएगा, मतलब सीखने के हिसाब से अगर देखो तो। तो क्या है, ले लेते हैं अपन 21 से 30 बैच के लिए। यहाँ पे वही पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10 एंड 4a प्लस 8 सॉरी 8a प्लस 4b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 84। इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या बन जाएगा? 4a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 42, और इसको कर देंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 20। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बन जाएगा? अगर इसको मैं माइनस कर लेता हूँ तो दिस विल बिकम अ, 2a प्लस 3c इज़ इक्वल टू 22, है ना? इधर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा ये। अब यहाँ पे ऐसे ही अपन a, b, c की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक? a की वैल्यू क्या हो सकती है? a की वैल्यू को हम अगर क्या 0 ले नहीं सकते, c पे दिमाग लगा देना। c की पहली वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 1 पे मिलेगी नहीं, c की पहली वैल्यू 2 पे मिलेगी। तो अगर c की वैल्यू 2 है, ठीक है? उस केस में c की वैल्यू 2 का मतलब 16 6 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 8, 0, नॉट पॉसिबल। अब क्या कोएफ़िशिएंट पे चलें? यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5, और यहाँ पे होना चाहिए था 4, ठीक है? 4 3 जा 12, और इधर ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 5 4 9 1, ये बन सकता है, चेक कर सकते हो। 5 8 जा 40 प्लस 1 44 प्लस 4 10 जा 40, ये भी हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है? यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 6 ले लें, और यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2 2 4 10, ये भी बन सकता है। तो चेक कर लो 2 8 जा 16, 16 और 8 24, 24 और 60, ये भी बन जाएगा। इसके बाद नहीं बन पाएगा बिकॉज़ फिर 2 के नीचे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे 5 1 और 4 बन रहा है, या यहाँ पे बन रहा है 2 2 और 6, ठीक है? अब हमने क्या करा, इतना सॉल्व करके तीनों केसेस बना लिए। अब आई नीड टू जंप टू द क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू आंसर द थिंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? ऑन 1st जनवरी, पहले जनवरी को क्या हो रहा है, इफ लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कॉपी कस्टमर बॉट द मामा चौधरी, सबसे कम देखो, मामा चौधरी का यानी कि पहले बात है, तो कब होगा ये? 3 2 5, और ये वाला केस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लूँगा तो फिर ज़्यादा आ जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7 वाला बात हो रही है। इन दैट केस द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हू बॉट द कॉमिक बिंकल, यानी कि ये वाले कौन होंगे? 5 6 और 8, यानी कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए? 8। ठीक। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला हुआ था। मामा चौधरी को मिनिमम अगर खरीदा गया, मिनिमम कब होगा? 3 2 5 और 5 2 7, ये वाला केस लेना पड़ेगा। उस केस में पूछा हुआ है कि आप टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हू बॉट बिंकल, बिंकल यानी कि बी की वैल्यू पूछा हुआ है, तो 5 6, और ये ले लेंगे 2 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1st जनवरी 2022 द नंबर ऑफ कस्टमर हू बॉट टिल्लू अमंग द फर्स्ट 10 कस्टमर, पहले 10 कस्टमर ने जो ये वाली मैगज़ीन लेते हैं, यानी कि कितने होने चाहिए? 2, ठीक। फिर से कस्टमर, मतलब पहले 10 कस्टमर का पूछा हुआ है, उन्होंने कितने खरीदी, ये खरीदी, यहाँ पे दिख रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ कॉपीज़ मामा चौधरी सोल्ड ऑन 1st जनवरी, 1st जनवरी को 3 2 5 5 10, 10 है, 3 2 5 2 7, 7 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 10, ठीक है। ऑन 1st जनवरी 2022 द नंबर ऑफ कस्टमर हू बॉट द कॉमिक टिल्लू वाज़, टिल्लू को खरीदने वाले कितने लोग थे? यानी कि थर्ड वाला ना, 2 7
9, 9 + 4 13 या 9 + 6 15. तो 13 और 15 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ ईज़ी से मॉडरेट सेट, मतलब शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मॉडरेट सेट हो बिकॉज़ आपने कभी भी इस तरीके की चीज़ कभी सॉल्व नहीं करी होगी। मतलब ये जो इक्वेशन बिल्ड करके बनाने वाला पार्ट, मेबी आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा। बट अगर आप इससे इंट्रोड्यूस कर लेते हो अपने दिमाग को एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर सेट विल बिकम आई वुड मतलब बहुत ईज़ी, मतलब 10 मिनट के अंदर-अंदर तुम आंसर्स निकालते जाओगे। जैसे इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर मैं चाहता ना तो मैं 2a + 3c की वैल्यू फटाफट लिख के कर सकता था। बिकॉज़ देखो बार-बार वही पैटर्न मिल रहा था ना, तो क्योंकि आई वाज़ एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट सो आई मेंशन्ड ऑल द केसेस। बट अगर मेरे को दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे ये बार-बार बनते जा रहा है तो मैं यहाँ से चीज़ों को फटाफट निकाल सकता हूँ। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।